Hello dear students, I am continuing chapter number 1 in Hornbill. Till yesterday I taught you up to here that the grandmother was not agreed with the study pattern of her grandson. अब उसके बाद हम एक और टर्निंग पॉइंट देखेंगे जो ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच में आता है. राइटर कहते हैं, When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. In this para, writer said that when he went up to university, he was given a separate room, and the common bond of friendship, the common link of friendship which was there between him and his grandmother, that was also curtailed away, that was also snapped, वो भी टूट जाता है. And the grandmother very easily, without any opposition, without any type of rebelling, she accepted her loneliness. वो अपने seclusion को, वो अपने loneliness को accept कर लेती हैं, without opposing, without resignation means without giving back any type of you can say opposition, किसी तरह का बिना विरोध किए, बिना रिबेल किए उसको वो एक्सेप्ट कर लेती हैं. उसके बाद शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. शी बिकेम बिजी इन स्पिनिंग हर व्हील. वो अपने चरखे में हमेशा बिजी रहती थी. एंड शी यूज्ड टू स्पिन इट मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट टॉकिंग टू एनीवन. सनराइज से लेकर के सनसेट तक शी ऑलवेज सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो सिर्फ अपना व्हील स्पिन करती रहती थी, जो स्पिनिंग व्हील था, और अपनी प्रेयर्स में जो है बिजी रहती थी. शी वॉज ए वेरी रिलीजियस लेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो शी ऑलवेज केप्ट ऑन रिसाइटिंग द प्रेयर्स एंड शी ऑलवेज डिड हर स्पिनिंग. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल. Even during that relaxation time, she used to feed the sparrows. The sparrows actually came and sat in the veranda. When the sparrows came there, the lady used to break the bread into little bits, and the little breads were thrown to them so that they could have a meal. Hundreds of little birds which collected there in the veranda, and they used to create a veritable bedlam of chirrupings. जब बर्ड्स के सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे झुंड आ जाता था, तो वो वहाँ पे क्या करते थे, एक ज़बरदस्त जो है चहचहाहट का माहौल वहाँ पे बना देते थे. वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स, कहने का मतलब अ वेरी नॉइजी एटमॉस्फेयर ऑफ द साउंड ऑफ बर्ड्स. साउंड ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड चिरपिंग्स, चिरपिंग्स, ट्वीटरिंग्स. सो उस साउंड को यहाँ पे कहा गया है जिसकी वजह से एक नॉइजी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, उसको कहा गया है कि अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स, यानी चिड़ियों की चहचहाहट की एक शोरगुल भरा हुआ माहौल. एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉइजी चिरपिंग्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की हैबिट के बारे में यहाँ पर राइटर कमेंट करते हैं कि सम बर्ड्स यूज टू इवन सैट ऑन हर लेग्स. कुछ उसके लेग्स पे जो है बैठ जाते थे. दे यूज टू पर्स्ड ऑन हर लेग्स. Other birds used to even sat on grandmother's shoulders. Some even sat on her head. यहाँ तक कि कुछ birds जो उनके सिर पे भी बैठ जाते थे. But grandmother was not disturbed. She did not got annoyed. Instead, she used to smile, and she never shooed them away. वे उन्हें कभी नहीं भगाती थी. This was the happiest half hour of the day for her. इसके बाद जो राइटर होते हैं खुशवंत सिंह, पेरेंट्स उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेज देते हैं. राइटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़. राइटर जो है डिसीजन लेते हैं कि अब उन्हें बाहर पढ़ने जाना है, तो जो पेरेंट्स थे उन्हें बाहर भेज देते हैं. और राइटर को ऐसा लगता है कि ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, दादी जो है निराश हो जाएंगी.
बिकॉज फॉर 5 years ही वुड नॉट बी एबल टू मीट हर। 5 सालों के लिए वो उनसे मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो बाहर रहेंगे अपने हायर स्टडीज़ में। और दादी की एक ऐसी एज थी कि इस एज पे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, उम्मीद इस बात का कि शायद वापस आने पर उनसे मुलाकात हो सके। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। वन कुड नेवर टेल मीन्स वन कुड नेवर बी श्योर। कोई भी निश्चित रूप से कह नहीं सकता था कि आफ्टर 5 years शी वुड बी देयर टू मीट हिम वंस अगेन। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन ऐसा होता है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज़ फॉर 5 years अब्रॉड, व्हेन द राइटर केम बैक, ग्रैंड मदर वॉज देयर एट द रेलवे स्टेशन टू मीट हिम इन द सेम वे एज शी डिपार्टेड हिम। जिस तरीके से उन्होंने उसको डिपार्ट किया था, सी ऑफ किया था, उसी तरीके से वो वहाँ पे उसी रेलवे स्टेशन पे मिलने भी जाती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी एक जरा सा भी सेंटिमेंटल नहीं होती है, शी डिड नॉट गॉट इमोशनल। एक्चुअली शी वेंट एट द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम एंड she didn't show any type of emotion nor she talked। ना तो उसने अपना कोई इमोशन दिखाया, ना वो बातें की। Yes, one thing she continuously did and that was her lips were moving in prayer। She was constantly praying। prayer you know very well। उनकी स्वभाव था कि वो हर वक्त जो है प्रार्थना में लीन रहती थी। And while she was seeing of her grandson, at that time also she was praying। Her mind was lost in prayer। Her fingers were busy telling the beads of her rosary। नॉर्मल हैबिट थी उस लेडी की। उस रेलवे स्टेशन पे भी उनका जो फिंगर्स था, they were still busy in counting the beads of the rosary। Very silently she came close and kissed the forehead of her grandson। And when I left cherished, the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और राइटर कहते हैं, I was very much pleased, I was so much cared and cherished, I was given so much love and affection by my grandmother that when I left her, the last physical contact, the last physical touch which was there between him and her, that was the moist imprint of the kiss that was given by grandmother to him at his forehead। बट डेट वॉज नॉट सो। ऐसा नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता कि वो लास्ट फिजिकल कंटेक्ट था। बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज हायर स्टडीज़ फॉर 5 years ही केम बैक होम एंड अगेन ही मेट हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन। दिस टाइम ऑल्सो शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। इस बार भी वो एक दिन वृद्ध नहीं दिख रही थी। शी हैड नो टाइम फॉर टॉक्स, और ना ही वो बातें कर रही थी। While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers again। The same mannerism, the same behavior, the same conduct। We can say that this time also the lady was reciting her prayers। She was busy in worship। When she embraced her grandson, जब वो अपने ग्रैंडसन से गले मिलती है तो ग्रैंडसन को ऐसा लगता है कि जो दादी के मुख जब उसके कान के पास पहुंचते हैं गले मिलने के दौरान, तो वो नोटिस करता है द ग्रैंड मदर वॉज स्टिल प्रेइंग। इवन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिवेक्स। यहाँ तक कि मेरे आने बाहर से, विदेश से लौट के आने का जो पहला दिन था, उस दिन भी ड्यूरिंग द डे टाइम द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ग्रैंड मदर वॉज विथ द स्पैरोज। शी वॉज ऑल्सो फीडिंग द स्पैरोज during the you can say mid break time of the day and with frivolous reviews। हाँ, there was a change। Yes, we can say there was a change। she was feeding the sparrows for a longer time। अब वो हाफ टाइम जो पहले हाफ एन आवर करती थी, अब वो टाइम बढ़ गया था। and she was feeding the sparrows with frivolous reviews। वे जो है frivolous reviews के साथ, यानी झटकार के साथ, फटकार के साथ, frivolous reviews। she was rebuking, she was you can say scolding the birds। वो birds को फटकार रही थी, डांट रही थी। and frivolous here refers to you can say उनकी बातों में जो है एक एंगर था, एक इरिटेशन था, इरिटेटेड रिब्यूकिंग कर रही थी वो
झुंझलाहट के साथ उन चिड़ियों को वो डांट रही थी। इस तरीके का बिहेवियर उनका नहीं था। ये चेंज जो है राइटर नोटिस करता है। शाम को क्या होता है, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। इवनिंग टाइम में दादी के अंदर एक चेंज देखता है, नोटिस करते हैं वो राइटर जो है। क्या देखते हैं कि शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना ही नहीं कर रही है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. राइटर बताते हैं कि इवनिंग टाइम में द ग्रैंड मदर कलेक्टेड वोमेन ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम द ग्रैंड मदर कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। पास पड़ोस के लोग महिलाओं को जो है दादी इकट्ठा कर लेती हैं। फ्रॉम समवेयर सी मैनेज एन ओल्ड ड्रम, कहीं से वो एक ओल्ड ड्रम की व्यवस्था करती हैं। एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग, लगती हैं गाने। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। कई घंटों तक तो क्या होता है कि जो दादी थी वो उस डिलेपिडेटेड ड्रम के, उस जर्जर झरझर, उस टॉर्न एंड वर्न आउट ड्रम, उस डैमेज्ड ड्रम के स्किन्स को, बोथ साइड्स को वो क्या करती हैं, बिट करती हैं। एंड शी वॉज बिजी इन सिंगिंग। सिंगिंग कैसे कर रही थी? एज इफ एनी वॉरियर हैड रिटर्न बैक, जैसे मानो कि कोई महान योद्धा, कोई ग्रेट वॉरियर घर वापस आया हो, तो उसके वापस आने पे जो विजय जुलूस के साथ जो नगाड़े बजते हैं और जो गीत संगीत गाए जाते हैं, इन द सेम मैनरिज्म, इन द सेम बिहेवियर शी वॉज सिंगिंग देयर। द लेडी वॉज परसुएडेड टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग। उस दादी को बहुत ही बहला फुसला करके ऐसा करने से रोका जाता है। द लेडी वॉज नॉट लिसनिंग टू एनी वन, सम हाउ शी वॉज परसुएडेड, किसी तरीके से उसे जो है मनाया जाता है, सो दैट शी कुड नॉट बी ओवर टायर्ड, ताकि वो ज़्यादा थक न जाए। डेट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहली बार ऐसा था मेरे लिए कि मैं उन्हें प्रेयर करते हुए नहीं देख रहा था। This was the first time the writer noticed that the lady was not praying, she was singing more with a changed behavior, एक बदले हुए व्यवहार के साथ वैसा पेश आ रही थी। Okay dear students, I am finishing up to here. Tomorrow I will complete this chapter. Thank you.